نون لیگ کا پنجاب اور کے پی میں بھرپور الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے لیگی رہنماؤں کو الیکشن کی بھرپور تیاری کی ہدایت کر دی۔ حکومت میں نہ آتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو۔ اجلاس کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ خورشید۔ جی حمزہ خورشید، بتائیے گا اجلاس میں مزید کیا کیا گفتگو کی گئی؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ماڈل ٹاؤن وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے یہاں پر ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا تھا، جس میں جو ہے نون لیگ کی سینئر قیادت موجود تھی، جیسے رانا ثناء اللہ، اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ، اعظم تارڑ اور زید حامد۔ اور جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز نے جو ہے وہ بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ اور اندرونی کہانی یہ سامنے آتی ہے کہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جو نواز شریف اور مریم نواز ہیں، ان کی ہدایت یہ ہے کہ جو کابینہ ہے وہ جو پنجاب ہے اس کے پنجاب کے جو الیکشن ہے اس میں بھرپور شرکت کرے۔ جو اب سے کچھ دن پہلے چہم گوئیاں ہو رہی تھی پنجاب اسمبلی توڑنے کے بعد کہ جی بات جو ہے وہ جنرل الیکشن کی جانب جا رہی ہے، وہ آج کے اجلاس کے بعد جو ہے وہ خبر شاید تردید کر دی جائے، کیونکہ جو ہے وہ ہدایت یہ سامنے آ رہی ہے کہ پنجاب میں جو ہے بھرپور الیکشن کی تیاری کی جائے۔ اس کے علاوہ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے اجلاس میں بات یہ طے ہوئی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ نون لیگ بھرپور الیکشن لڑے گی، اور بقایا دو صوبے اور خیبر پختونخوا بقایا دو صوبے اور جو قومی الیکشن ہے وہ اپنے وقت پر ہوں گے۔ اس کے علاوہ آج جو ملاقات تھی وہ ایک خصوصی یہ تھی کہ آج قاسم علی شاہ جو ہے ان کی آمد ہوئی یہاں پر، جو کہ ایک مشہور موٹیویشنل سپیکر ہے، جن کی کل ملاقات جو ہے وہ عمران خان سے بھی ہوئی تھی، اور یہ سامنے آیا تھا کہ شاید انہوں نے ٹکٹ کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہنا پرویز بٹ جو ہے نون لیگ کی، ان کا ایک ٹویٹ یہ بھی سامنے آیا تھا کہ جھکے ہوئے انسان جو ہیں وہ کبھی بھی غلامی میں بھی سیدھے ہو کر بیٹھ نہیں سکتے۔ آج قاسم علی شاہ نے جو ہے وہ یہاں پر ماڈل ٹاؤن بھی آمد کی، اور جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی بھی قسم کی ٹکٹ لینے نہیں گیا تھا، میں بلکہ دونوں جو ہیں وہ پارٹی ٹکٹ نہیں لینے گئے تھے۔ اچھا حمزہ، یہ بھی کلیئر کر دیجیے گا کہ کہا جا رہا تھا کہ مشاورت کے بعد ہے وہ پتہ چلے گا کہ جیسے ہی مشاورت ہوگی گورنر پنجاب ہیں وہ دستخط کریں گے یا نہیں؟ اب تو مشاورت بھی ہو چکی ہے اور مشاورت میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ الیکشن کے لیے تیاریاں شروع کر دی جائیں، یعنی اب اس بات کی کنفرمیشن ہوگی ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ دستخط کر دیں گے؟ بالکل، جب عطا اللہ تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میرا جو ہے وہ مشورہ یہی ہے بلیغ الرحمان صاحب کو کہ وہ جو ہیں وہ سمری پر جلد سائن کر دیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان کی طرف سے سمری کے اوپر سائن کو دیکھنے میں سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی جو ان کا ہے کہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جو بلیغ الرحمان ہے وہ سائن کرنے جا رہے ہیں یا پھر نہیں۔ ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو پنجاب میں انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ نواز شریف کا لندن میں منعقدہ پارٹی قیادت کے اہم مشاورتی اجلاس میں اعلان کیا ہے۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو پارلیمانی بورڈ قائم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو پنجاب میں انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی گئی۔ نواز شریف کا لندن میں منعقدہ پارٹی قیادت کے اہم مشاورتی اجلاس میں یہ اعلان کیا گیا ہے، جبکہ نواز شریف نے شہباز شریف کو پارلیمانی بورڈ قائم کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو اہم فیصلے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا یہ بڑا فیصلہ ہے۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو پنجاب میں انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ نواز شریف کا لندن میں منعقدہ پارٹی قیادت کی اہم مشاورتی اجلاس میں یہ اعلان کیا گیا ہے۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو پارلیمانی بورڈ قائم کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اور دوسری جانب پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور ممکنہ صوبائی انتخابات کا معاملہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے فوری وطن واپسی سے انکار کر دیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نون لیگ کی سینئر قیادت نے نواز شریف کو رواں ماہ ہی وطن واپسی کی تجویز دی تھی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو جواب دیا ہے کہ مریم نواز کی فوری وطن واپسی کا امکان ہے، جبکہ موجودہ سیاسی صورتحال میں میرا پاکستان آنا ممکن نہیں۔ مریم نواز واپس جا کر کچھ عرصے بعد مجھے رپورٹ دیں گی تو اس کے بعد ہی وطن واپسی کا فیصلہ کروں گا۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو بھرپور تیاری کے ساتھ انتخابی میدان میں اترنے کی ہدایت کی ہے۔
आपको बताएं कि इमरान खान ने वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली की मंजूरी दे दी है। इंतखाबात के लिए टिकट्स की मंजूरी का अमल शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत ये अहम मुशावरती इजलास हुआ और इस इजलास में निगरान सेटअप के लिए इमरान खान कल परवेज़ इलाही से मुलाकात भी करेंगे। मज़ीद इस बारे में जानेंगे, लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत, बताइएगा। PTI के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत ताल्लुक़ मशावरत में 3 अहम फैसले किए गए, जिसमें एक तो ये फैसला किया गया कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उनके खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है और इस हवाले से इमरान खान ने पार्टी को हदायत जारी की है। इमरान खान को ब्रीफ किया गया कि मुस्लिम लीग के 5 MNA जो हैं वो इस वक्त PTI की क़यादत से राब्ते में हैं और जिनमें से 4 सेंट्रल पंजाब और 1 जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक है। अब मज़ीद अरकान से भी राब्ते हैं और जो ही ये मैच्योर होंगे तो उसके बाद जो है सदर ममलकत को जो है वो एतमाद के वोट की कार्रवाई के लिए कह दिया जाएगा और वो शहबाज शरीफ को इसके लिए बाज़ाब्ता खत लिखेंगे। दूसरा ये फैसला किया गया है कि इमरान खान कल परवेज़ इलाही से मुलाकात करेंगे। ज़मान पार्क में होने वाली इस मुलाकात में निगरान सेटअप के हवाले से इमरान खान उनको एतमाद पे लेंगे और PTI जो कंसेंसस से नाम जो है वो तजवीज़ करेगी वो नाम परवेज़ इलाही को दिए जाएंगे ताकि वो हमजा शहबाज यानी अपोजिशन लीडर के साथ उस पर मुशावरत कर सके। तीसरा ये फैसला किया गया कि पार्टी को हदायत की गई है कि वो आम इंतखाबात की तैयारी शुरू करे और सतह पर जो पोटेंशियल कैंडिडेट है उनके नाम भिजवाए जाए। अच्छा, तो लियाकत कौन कौन से नाम जो हैं वो ज़ेर गौर हैं निगरान सेटअप के लिए? ठीक है लियाकत, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में कानूनी और आइनी पहलुओं और निगरान वज़ीर आला के नाम के हवाले से गौर किया गया। आपको बताएं कि मुशावरती इजलास में असम्बली तहलील की एडवाइस के बाद कानूनी और आइनी पहलुओं का जायज़ा लिया गया। इजलास में निगरान वज़ीर आला के नाम के हवाले से भी गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान से जो वादा किया उसे निभाया। हम जिसके साथ चलते हैं खलूस और दिल से साथ चलते हैं। इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा है और आइंदा भी इमरान खान का साथ देंगे। असम्बली की तहलील के बाद आइन के तहत निगरान सेटअप मुशावरत से तश्कील पाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान, सूबाई वज़रा मियाँ महमूदुर रशीद, सरदार हुसनैन बहादुर दरीशक और दीगर ने इजलास में शिरकत की। आवाम ने उनके चेहरे पहचान लिए हैं। मुल्क की मैशत तबाह हो गई है। महंगाई, बेरोजगारी में इजाफा उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू पूरी तैयारी के साथ उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा जाएगा। मुल्क में इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है, ऐसा कहना है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान। आपको बता रहे हैं कि आवाम ने उनके चेहरे पहचान लिए हैं। मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। महंगाई, बेरोजगारी में इजाफा उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू पूरी तैयारी के साथ उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा जाएगा। मुल्क में इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से ये अहम मुलाकात हुई है और उसमें ये गुफ्तगू की गई। और नाजरीन, दूसरी जानिब गरीब आवाम की सेहत के साथ भी खिलवाड़। ऑपरेशन में ज़ायदुल मयाद अद्वियात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। पंजाब के 65 अस्पतालों में सेहत कार्ड की सहूलत ख़त्म कर दी गई, जबकि अस्पतालों ने सेहत कार्ड पर सर्जरीज में ज़ायदुल मयाद अद्वियात इस्तेमाल की और बाज़ अस्पतालों में मरीजों को गैर मेयारी तिबी सहूलियात फराहम की गईं। गफलत, बेज़ाब्तगियां और गैर जिम्मेदारी। आवाम पर भारी हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की कमजोर मॉनिटरिंग से गरीब से इलाज के लिए सेहत सहूलत कार्ड की सहूलत छिन गई। जराये के मुताबिक मरीजों को गैर मयारी सर्विसेज फराहम की गई। सेहत सहूलत कार्ड की मद में अस्पतालों को 88 करोड़ 35 लाख रुपए की अदायगियां की जा चुकी हैं, जिसे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली बेकायदगियां करार दिया। ऑडिट रिपोर्ट के बाद हेल्थ कार्ड पैनल पर मौजूद 65 अस्पतालों को सेहत कार्ड के पैनल से खारिज कर दिया गया है। दूसरी जानिब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक ने ऐसे ऑडिट पैरा से लाइल्मी का इजहार किया। मेडिकल माहिरीन कहते हैं हेल्थ कार्ड पैनल से फारिग किए गए अस्पतालों के खिलाफ अवामी आगाही के लिए इश्तिहार जारी किया जाना चाहिए। और अभी आपको अहम खबर दें, पंजाब असम्बली की तहलील से मुतालिक गवर्नर पंजाब का बयान। फैसला किया है कि असम्बली की तहलील के अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा।
ऐसा करने से आईनी अमल में रुकावट का कोई अंदेशा नहीं। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली की तहलील से मुतालिक गवर्नर पंजाब का अहम बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया कि फैसला किया है कि असम्बली की तहलील के अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। ऐसा करने से आईनी अमल में रुकावट का कोई अंदेशा नहीं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यासीन। यासीन बताएगा इस बारे में। पंजाब असम्बली के तहलील का मामला जो गुज़श्ता 48 घंटों से इसका इंतजार किया जा रहा था, अब अभी चंद मिनट कबल ही जो गवर्नर पंजाब ने इस हवाले से ये गवर्नर हाउस की तरफ से ये ज़राए ने बताया है कि गवर्नर ने असम्बली पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मैंने फैसला किया है कि मैं असम्बली के तहलील के अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। ऐसे करने से आईनी अमल में किसी किस्म की कोई रुकावट का अंदेशा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आइन और कानून में सराहत के साथ तमाम मामलात के आगे बढ़ने का रास्ता मौजूद है। वाज़ेह है कि बहुत से चैनल जो है वो आज सारा दिन चलाते रहे कि गवर्नर ने इस पर असम्बली पर दस्तखत कर दी है, जबकि लाहौर न्यूज़ इस हवाले से मसलसल ये चलाता रहा कि गवर्नर की दस्तखत का इंतजार है। यूं लाहौर न्यूज़ एक बार फिर बाजी दे गया है और उन्हें इस हवाले से अपने नाजरीन तक बिल्कुल दुरुस्त और बर वक्त खबर दी है कि अब जो है वो गवर्नर ने ये फैसला किया है कि वो इस समरी पर दस्तखत नहीं ठीक है, करेंगे। गवर्नर ने ये फैसला किया है कि वो समरी पर दस्तखत नहीं करेंगे। मोहम्मद यासीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी ज्वाइन किया है लियाकत अली ने। लियाकत अली, बताइएगा, गवर्नर पंजाब का ये अहम फैसला सामने आया है, वो दस्तखत करने से इनकार कर चुके हैं, अब आगे क्या होगा? गवर्नर पंजाब ने चूंकि अब दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो 10:11 पर पंजाब असम्बली आज खुद तहलील हो जाएगी और उसके बाद असम्बली की तहलील के बाद जो है अगला आईनी अमल जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसके लिए वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ लाई और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के साथ जो है वो मुशावरती अमल का जो है वो आगाज हो जाएगा। और उसमें वज़ीर आला पंजाब जो है वो हमजा शहबाज को खत लिखेंगे और उसमें ये कहा जाएगा कि आप 3 दिन के अंदर ये इन्हें अपनी मुशावरत मुकम्मल करना होगी और अगर इसमें ये नाकाम रहते हैं तो फिर मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। वहाँ पर स्पीकर जो है वो दोनों जानब से हुकूमत और अपोजिशन से नाम लेने के बाद पार्लिमानी कमेटी कायम करेगी और उसको भी 3 दिन का वक्त होगा। अगर वो भी नहीं इत्तेफाक करते, जो पार्लिमानी कमेटी में नाम 4 आएंगे, वो चारों नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिए जाएंगे और फिर 48 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो केयर टेकर वज़ीर आला का अनाउंसमेंट कर देगा। तो उसमें फिर इन सियासी ताकतों की जो है वो मुदाखलत खत्म हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार होगा कि उन 4 में से किसी एक को भी वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो केयर टेकर के सेक्टर में बना दे। तो यूं अब आज रात से ही जो कह लें कि वो आईनी अमल अब आगे बढ़ेगा और वज़ीर आला पंजाब अपोजिशन लीडर से मुशावरत का आगाज करेंगे। जी ठीक है लियाकत अली, ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास फैसला जाएगा और इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करेगा, तो अगर इलेक्शन कमीशन भी 48 घंटों में फैसला नहीं करता तो उसके बाद क्या अगला आईनी तौर पर कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं, यहाँ तक की नौबत नहीं आती क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी, उसने किसी से इत्तफाक नहीं करना। हुकूमत और अपोजिशन में अदम इत्तफाक हो सकता है, पार्लिमानी कमेटी में अदम इत्तफाक हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो एक अदारा है, उन चारों में से किसी एक को जो वो मुनासिब समझेगा उसको वो केयर टेकर सेटअप के लिए निगरान वज़ीर आला के तौर पर नोटिफाई कर देंगे। तो वहां से मामला आगे कहीं नहीं जाएगा। इलेक्शन कमीशन इज लास्ट कह लें कि डेस्टिनेशन जहाँ से ये हर सूरत में जो है वो नोटिफिकेशन होना है, उसके आगे मामला नहीं जाएंगे। ठीक है लियाकत अली, हमारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद यासीन, मैं आपकी तरफ दोबारा बढ़ूंगा। ये बताइएगा कि जैसा कि गवर्नर पंजाब ने इनकार कर दिया दस्तखत करने से, क्या इस हवाले से कोई ऐसी इतलात भी हैं कि गवर्नर राज लगने का कोई इम्कान है? ऐसी कोई सूरत हाल भी पैदा हो सकती है? चल ऐसा कोई इम्कान नहीं है, ना ही पार्टी ने इस हवाले से कोई इशारातन भी बात नहीं की। मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई इस तरह का माहौल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल अमन के साथ हर काम हो रहा है। तो ये जो गवर्नर राज है इस हवाले से भी क्या सराहियां नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब ये एक सियासी और जमहूरी अमल जो है वो एक प्रोसेस में है और इस दौरान कोई ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई इस हवाले से कोई रिस्क लेगा कि गवर्नर हाउस की बात की जाए या गवर्नर हाउस लगाया गवर्नर राज लगाया। लियाकत अली, मोहम्मद यासीन हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार सलमान गनी साहब ने। सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि फैसला कर लिया गया है अब गवर्नर पंजाब की जानिब से कि वो दस्तखत नहीं करेंगे। आईनी तौर पर आईनी सवाले से क्या कहता है, अगर गवर्नर पंजाब दस्तखत नहीं करते तो मामला आगे जाएगा, कहाँ तक आगे जा सकता है और क्या इम्कानात हैं आगे पंजाब की सियासत के?
بات یہ ہے کہ اگر گورنر صاحب نے باقاعدہ انکار کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو آئین پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ جب چیف منسٹر نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اور انہوں نے ایڈوائز دے دی، یہ تو خالصاً ایک آئینی طریقہ کار ہے، اور آئینی طریقہ کار پر کاربند رہنے کے جناب گورنر پابند ہے۔ میں نہیں سمجھ پایا کہ جی گورنر نے اس کا انکار کیوں کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ماضی کے اندر اس طرح کی جو مشق جو ہے وہ ہوتی رہی ہے کہ جب چیف منسٹر نے کہا ہے تو اس پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تا وقت ہے کہ اگر کسی نے اسے عدالت میں چیلنج کیا ہو، چونکہ اسمبلی توڑنے کے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا گیا، تو میں یہ وجوہات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ گورنر صاحب نے اس پہ انکار کیا۔ ٹھیک ہے، سینئر تجزیہ کار سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نمائندگان محمد یاسین اور لیاقت علی بھی موجود تھے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے متعلق گورنر پنجاب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے عمل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ایسا کرنے سے آئینی عمل میں رکاوٹ کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب کے دستخط کا 48 گھنٹے سے انتظار کیا جا رہا تھا، اور آپ کو بتائیں کہ اب پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے متعلق گورنر پنجاب کی جانب سے بڑا بیان سامنے آ گیا ہے۔